अमृतसर में इतना टूरिस्ट है, इट इज़ ऑन द विश लिस्ट और द बकेट लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एटलीस्ट इन इंडिया। हमारे यहाँ से उल्टा इतने ज़्यादा आर्टिस्ट गए हैं। नहीं, सपोर्ट मिलता है, सुनने वाले नहीं। पीपल आर ट्राइंग टू लुक रिच बट दे आर नॉट। आई थिंक रादर देन मनी मैनेजमेंट, wealth management is more important. Okay, well, like what's the difference? Try to make your money work for you. Yeah. Right? ये वाला जो एज ग्रुप है हमारे एज ग्रुप से बहुत बेटर है। आपके कॉन्सेप्ट्स आई डोंट नो क्लियर हैं कि नहीं है, बट आप लोग करप्ट नहीं हो। वॉट एवर यू ट्राई टू चार्ज सो आप सीधा बोलते हो। जो लोग आप वर्क फ्रॉम होम या वर्चुअल वर्ल्ड से जो कर रहे हो, हमारा दूर दूर से वास्ता नहीं है हम लोगों के एज ग्रुप का, बट इट्स अ बिग मनी आई एम टेलिंग यू। सो इन्वेस्ट इन IT, इन्वेस्ट योर क्रिएटिविटी, इन्वेस्ट इन योर क्रिएटिविटी, इट मेक्स यू बिग। एक गुजरात की कहावत है जी कि जो करना है ना, जो भी कुछ करना है, अगर सोच लिया ये करना है तो 1000 दिन के लिए जरूर करो। वो कहते हैं जी 1000 दिन के लिए उस काम को छोड़ना नहीं है। Behind every man's success there is a woman. So what you would like to talk about कि कैसे मैम helped you to be where you are and how you helped her to be where she is? Yeah, I think it's a mutual thing. Yeah. So we are life partners. So Yeah. we understand each other very much. So hi everyone, welcome to the season 2 of the Actophilia show and I'm very excited कि हम ये season 2 के साथ आए हैं और आज हमारे जो first guest हैं मिस्टर देवेंद्र सर। थैंक यू सो मच सर, आप आज अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। Thank you, Vishal. Thanks to you. So जिसने हमें invite किया. Thank you very much. It's my pleasure sir. And the reason sir is here, he's a very reputed CA in our region. मेरी जो आपके लिए respect है, it increases beyond that also because he is promoting artists in Amritsar and which is such a beautiful thing to see. And because I am also associated with something which promotes artists, so seeing someone so senior to us doing that and bringing that culture here is such a beautiful thing. So thank you so much for that. Thanks to you. Thanks to you. And I would like to add one thing, that I don't promote artists. I encourage, Yes. art. Yeah. So that the artists should promote themselves. So that's it. That's what I do. And I must say कि आपके साथ बैठकर it doesn't feel like I'm talking to somebody who is very senior in terms of age. It feels like मैं कि अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ. So thank you for creating that comfortable space around me. Thank you. So, and मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहला सवाल आपके लिए होगा कि जो लोग आपको नहीं जानते, though he is very famous, you are very famous in our region. तो अगर आपको अपने बारे में बताना हो 30 seconds में, so how would you pitch yourself to others? So my name is Devinder. By profession, I am a chartered accountant and I am a 7th generation Amritsari. I love my city like anything. So I think I completed in 15 seconds. Oh wow, awesome. और अगर हम ये बात करें कि आपको इंटरेस्ट कहाँ से जागा that you wanted to encourage artists in Amritsar? So far interest is concerned, I am an author also by accident. Yes. Yeah. So recently, around 5 years ago, so I was सच बताऊं कि एक सच चलो मैं सच बताता हूँ आपको. So 5 years ago, I was elected as a Rotary International governor. So Rotary International एक US based NGO है. जी जी. तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 12 लाख उसके मेंबर्स हैं एंड हर साल 500 के आसपास अलग अलग कंट्री से वो गवर्नर चूज करते हैं जो सारे रोटरी क्लब्स को मैनेज करते हैं. तो आई वाज इलेक्टेड एज ए रोटरी इंटरनेशनल गवर्नर. अभी आई वांटेड टू बिल्ड माय बायोडाटा और मैं चाहता था उस बायोडाटा में ना मैं लिखूं कि आई एम ऑथर आल्सो. Okay. So then I thought I should write about what Rotary International is doing good for the community and service. So Dolly, my wife, she's very smart, and she says कि ये अच्छी बात आपको लिखना चाहिए, but why don't you write about something which you have been talking all the time? That's about your city. So then this idea cropped up to write a book on Amritsaris. Okay. This book is not about Amritsar, but about Amritsaris, our culture, our lifestyle. I wrote it. I don't know what happened. It turned out to be a bestseller. Oh wow. So, but again, एक सच बात बताता हूँ आपको. अब वो bestseller क्यों हुई? Because it is available on Amazon also, Crossword also, all the leading bookstores in Amritsar also. जी. So अच्छी खासी किताबें वो बिक चुकी है. But शायद उसकी marketing की वजह से वो bestseller बनी. Because when I was Rotary International Governor, so हमारे रोटरी में ना पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के रोटरी क्लब्स को मैं हेड करता था. I used to tell them कि भाई don't read my book, just buy it. They had to buy it. They had to obey their governor. So somehow, but honestly Vishal, किताबें पढ़ने का शौक नहीं है लोगों को.
पंजाबियों ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ honestly speaking ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ is something then I thought ke if actual people are relating the Amritsari vibe with that book especially those जिनकी शादियां बाहर हुई हैं जिनके कैरियर बाहर हैं then I chose the medium of Instagram which is you guys Instagram Yes, yes. हम लोग फेसबुक की जनरेशन है so we are not Instagram generation right but I tried to connect with them so then we made our Insta page Timelets Amritsar and I start talking the content of the book the content of Amritsar the Amritsari heritage and Amritsari lifestyle on that page so again so लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कैच किया ग्रैस्प किया अडेप्ट किया एंड इट बिकेम इवॉल्व कर गया तो देन आई थॉट कि यार वो करे ना जो करना चाहिए अमृतसर में इतना टूरिस्ट है इट इज ऑन द विश लिस्ट और द बकेट लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबॉडी एटलीस्ट इन इंडिया Right. हर बंदा एक बार अमृतसर अपनी लाइफ में जरूर आना चाहता है बिल्कुल. So I thought कि people are responding it and whenever we go to Bombay or Ujjain or Cochin or Bangalore, we see so much artistic activities happening over there. So और यहाँ पे vacuum है. So we started doing small poetry events. यहाँ पे लोगों ने डायरियाँ भर भर के अपने दराजों में संभाली हुई हैं कोई उसको सुनने वाला नहीं है घर के तो बिल्कुल ही नहीं सुनते right so then we thought कि why not so we start doing it and people start connecting and we could make a very strong community of young poets Right. so that's how it started so this is a journey बाकी मैं आपको I must admit ये चीज़ कि when I saw the Timeless Amritsar page and it is one of the most trending pages in Amritsar जहाँ पे artists के बारे में बात होती है and अमृतसर के heritage culture सब के बारे में बात होती है तो to be very honest I expected कि somebody who is very younger maybe our age who is running that and when मुझे हनीश भैया ने बताया and you are running that I was like this is so awesome and आपके एक बहुत ही amazing quality पता लगती है that you never stopped learning whatever came your way you learned that and आपने उसके ऊपर चीज़ें build करी so how did you develop that quality within you I tell you जब मैं आपकी एज का था ना जी जी how old you were 19 19 yes no आपसे थोड़ा बड़ा जब मैं 24 साल का या 25 साल का था जब मैंने सीए करा जी मेरे जो दोस्त थे ना जी वो मेरे से 30 साल बड़े थे oh so when I was 25 मेरे friend circle in 50s and 60s and even in 70s जी जी so I used to learn from them yeah आज मैं 50 का हूँ जी आज जो मेरे दोस्त हैं ना वो मेरे से 30 साल छोटे हैं कोई 20s में है कोई 25s में है कोई 30s एंड अगेन आई एम लर्निंग आई थिंक दिस लर्निंग कीप्स यू गोइंग कि भाई कुछ ना कुछ सीखने का अच्छा लगता है बट यू राइट कि इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट है ना बिकॉज इतने लोग अब हमारे पेज के साथ कनेक्ट कर गए हैं जो कंटेंट है दैट्स नॉट माइन the vision may be mine right so there are so many nano influencers and so many youngsters who keep on sending their content so I happily post on the page by giving all the due credits to them rather all the credits so we want कि ultimately यार ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ so they contribute in this and that's how we do yeah right तो जैसे आपने बताया कि मैम ने आपको पहली बार बताया about this तो how did you plan creating this Instagram page and how long it took for you to ऐसे bloom on Instagram so Dolly has inspired me to write a book okay I wrote that book जी और चल भी गई वो इसलिए चली मैंने एक तो फ्री एक भी कॉपी नहीं दी किसी को so even my daughter has to buy it my sister has to buy it फिर लोगों को पता लग गया कि भाई ये सीए का दिमाग है ये फ्री पे बेचने वाला नहीं है तो I could do that and when we jumped onto Instagram then honestly speaking I had no idea of this okay I had no Dolly has no idea of this right. I took the help of my younger daughter and वो भी तो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ हाँ जी या एक साल बड़ी होएगी and you know so जिसको कहते हैं ना तरले करने पड़ते हैं कि यार एक रील बना दे मेरे लिए so she said पापा नहीं मैं आज बना दूंगी कल बना दूंगी then she got selected in Shriram College of Commerce okay Delhi University she's gone now what I do so फिर मैंने आप सब लोगों के पेज देख देख के होली दिए awesome I learn how to do it but it's not the content of the reel or the content of the technique of the reel it's the emotions and the elements
which is a part of the post. So if you really want to tell कि भाई अमृतसर में, let's say, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अमृतसर में हम लोग फूडीज हैं, इट्स अ फूडी सिटी. यस अब जो कचौरी है फॉर एग्जांपल, जी सुबह की कचौरी अमृतसर में ना हलवे के साथ खाई जाती है, और शाम की कचौरी जो है ना वो चनों या लौंजी के साथ खाई जाती है. हाँ जी सो दिस इज सम ये जो नफासत है अमृतसर फूड की, सो आई थिंक पूरी दुनिया को नजर आनी चाहिए. सो अब ये चीज़ आप बताना चाहते हो तो वो आप किसी तरीके से भी बता सकते हो, मे बी रिटन कंटेंट और रियल कंटेंट और पोस्ट कंटेंट, सो लाइक दिस. राइट राइट एंड आई एम श्योर जो भी लोग ऐसे अमृतसर घूमने आते होंगे टूरिस्ट वगैरह वो आपका पेज देखते होंगे कहाँ अच्छे अच्छे खाने के मिलते हैं और सीधा वहाँ पे. so many so many and honestly speaking इसलिए जो पेज है that's faceless because मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी ना तो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. अरे नहीं तो अभी तो जो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है यू नो वो डूड से शुरू होती है, और जब कोई वो कॉन्वर्सेशन को सब सीरियस नोट पे जाती है तो वो सर पे आ जाती है. सो आई डोंट वांट दैट टू यू नो एक्लिप्स देयर जजमेंट. कोई समझता है कि ये लड़की का कंटेंट है भी because there are so many interns are there. And then what we did is after doing open mic, so we did one more thing. Cafes में there is a big problem, so they look for the food sale. So they you know say कि minimum guarantee चाहिए, minimum commitment चाहिए, off hours में चाहिए, इतनी जल्दी आप खत्म कर दीजिए. Then we thought कि so this is poetry is one form of art. Why not we do in the art form, in the painting form, so the podcasting form. So then me and Dolly, so dedicated our one floor to the city. So we created our office of Timeless. So normally लोग physical से virtual में जाते हैं, हम लोग virtual से physical में. So we had actually a office. It's a 1.5 floor office. Right. So we have around 6 or 7 persons who are working here. Awesome. Most of them are interns. And if you happen to visit sometime, आपको कहीं कोई co-working space में काम करता नजर आएगा, कोई artist आपको painting बनाता वहाँ नजर आएगा, स्टूडियो में कोई podcast record करता नजर आएगा, you know, कोई musician वहाँ पे guitar classes लेता नजर आएगा. So I think ये चीज़ जो है ना हमारे शहर में जी जी इसकी जरूरत है. जितने ज़्यादा हो उतने कम. So these kind of आर्ट स्पेसेस, ओपन माइक मैं समझता हूँ घर घर में ओपन माइक होना चाहिए. उसके लिए कैफे नहीं चाहिए, आपका ड्राइंग रूम ही काफ़ी है, ड्राइंग रूम भी नहीं चाहिए, आपका टेरेस ही काफ़ी है, यू नो. सो दैट्स एंड इफ सम आर्ट वर्कशॉप इज देयर इट कैन बी एनीवेयर, बिकॉज आर्ट वाइब्स जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये जो क्रिएटिविटी है. सो दैट्स व्हाट इट. एंड जैसे आपने पहले जब हमने स्टार्ट किया पॉडकास्ट आपने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे अमृतसर में घर वाले ही सुनने वाले नहीं है. राइट आपको क्यों लगता है ऐसा कल्चर क्यों है हमारे यहाँ से उल्टा इतने ज़्यादा आर्टिस्ट गए हैं, बी एट कपिल शर्मा, कॉमेडियंस, एक्टर्स, कितने ही सारे अच्छे सिंगर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट व्हाई डू यू थिंक कि घर पे इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? नहीं, सपोर्ट मिलता है, सुनने वाले नहीं है. सुनने वाले सपोर्ट तो मिलता ही है. अगर सपोज कोई राइटर है या कोई पोएट है या कोई आर्टिस्ट है, so parents as the first person to support them कि ठीक है जी, you do it, or even if you are a painter they support it. बट ये तो इंटरेस्ट की बात है ना, कि मुझे पोइट्री अच्छी लगती है कि नहीं लगती. इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भी आप मेरे बेटे हो और आप एक अच्छी पोइट्री लिखते हो तो मैं, और मुझे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पोइट्री में तो मैं उसको सुनूं. सो नॉर्मली इट हैपेंस. हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनता, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनती, आप पोइट्री की बात कर रहे हैं. बट अदरवाइज जब यू नो 10 पोइट्स इकट्ठे बैठ जाएंगे, राइट वही ऑडियंस है और वही परफॉर्मर है, तो वो एक दूसरे को सुनेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे. एग्जैक्टली. जरूरत है इनको ना, जो खानों में बंद है लोग, अलग अलग इतना टैलेंट है यार. मैंने देखा उनको निकाल के एक प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेट देनी है जहाँ पे बैठ के सारे उसके वाइब को एंजॉय कर सकें. सो दिस इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई गेस टाइमलेस एंड अज़ल दोनों ही बहुत सक्सेसफुल रहे हैं कि ये एक चेंज अमृतसर में लेकर आने के आना चाहिए. अभी चेंज आया नहीं है, सो मतलब आ रहे हैं, इट्स ऑन द वे. चेंज तब आएगा यार जब मैं ये समझूंगा कि अमृतसर में ना यू वुड से 1 या 2 नहीं 30 या 35 लोग आगे बढ़ के ना, सो ऐसे छोटे ग्रुप्स में स्टोरी टेलिंग करें, पोइट्री रिसाइटिंग करें, बुक रीडिंग करें. राइट. हम एक बुक रीडर क्लब शुरू करने जा रहे हैं. ओके. सो उस बुक रीडर क्लब में क्या रहेगा कि 5 या 6 लोगों का ग्रुप होगा और विल बी रीडिंग अ बुक टुगेदर, कलेक्टिव. एक किताब सबके पास एक कॉपी रहेगी एंड एक कोऑर्डिनेट करेगा, मॉडरेट करेगा और बाकी लोग पढ़ेंगे. सो ऐसे 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप. Let's see how it goes. Yeah. Wow, that is an amazing idea. Yeah.
राइट, तो कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन चालू कर दी है. अच्छा, स्टार्ट कर दिया? Yes, yes, yes. I think post Diwali we'll be doing our first reading session. आप भी आइए. बिल्कुल बिल्कुल, I'll come. Okay, I'm diverting a little from this artistic world. अब behind every, जैसे कहते हैं कि behind every man's success there is a woman. So would like to talk about कि कैसे मैम helped you to be where you are and how you helped her to be where she is. Yeah, I think it's a mutual thing. Yeah. So we are life partners. So Yeah. we understand each other very much. Right. And she's one of the most beautiful women in the world. So I always admire her, appreciate her. Right. And so I think so जो life partners हैं, so जी. उनका they support each other. Right. So that's it. So how did you meet? How did you meet? हाँ. It's a purely arranged marriage. Okay, wow. Our parents, so उन्होंने हमें मिलवाया. Right. And it became a very beautiful thing. Yeah, it is. So I was trying to ask it directly, but then I was like, मैं पूछा था क्या? now since you are a CA, तो मेरे पास और भी एक सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस थे. तो आई वांट टू आस्क कि जो आजकल हमारी जनरेशन है, व्हाट वुड यू टेल देम अबाउट money management? I go through this problem at times when I get money. I don't know how to save it, how to invest it, वो सब चीज़ें. I could use it for myself rather than ये सोचना कि ऐसे ही फालतू में spend कर देना. What do you think youngsters like me should do with their money management and all of that? I think rather than money management, wealth management is more important. Okay, well, like what's the difference? Try to make your money work for you. Yeah. Right? For example, there is a difference between a rich person and a wealthy person. Okay. So a rich person, for example, some celebrity who's making good money, spending a lot, but he may not be a wealthy. He may end up in a bankruptcy if he doesn't save, or if he doesn't, do that kind of investments which ultimately earn for them. Right. For example, suppose I have X amount of money, right? अभी मैंने उसका घर लेना है. मैं घर ले लेता हूँ और उस पर मैं एक लैविश घर बनाता हूँ, राइट? सो उससे मेरी रिचनेस नजर आएगी. ओके, बट एट द सेम टाइम अगर उसी घर में मैं इस तरीके से प्लानिंग करूँ कि उसका एक फ्लोर मैं BNB में दे दूँ या उसका एक फ्लोर मैं रेंटल के लिए दे दूँ, सो दैट रेंट दैट हाउस विल स्टार्ट जनरेटिंग इनकम फॉर मी. दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट. Right. So whatever you do, whatever financial decision you take, so keep this thing in mind. Okay. Okay, so how this investment or spending can generate money for you. So after some time, so what will happen? So you pause ले लीजिए and वो जो पैसा है ना वो आपके लिए काम करेगा. Money is a excellent servant and a terrible master. So पैसे को यहाँ पे रखो, यहाँ पे मत रखो. So this is that is so like wonderfully said. Yes. And आपको लगता है कि ये कल्चर आजकल हो रहा है कि people are trying to look rich but they are not. Instead they should focus on being wealthy. And मतलब वो जो एक शोबाजी होती है that shouldn't, वो ज़्यादा हो रही है और वो नहीं होनी चाहिए. शोशेबाजी, so that's trending. So so आजकल जो peers जो कर रहे हैं सभी वो, so everybody does that. जैसे for example weddings. So wedding is a big industry. Honestly speaking, wedding is a festival of emotions. Right. It's not a event management. Right. So अगर आपने vibe create करनी है, so vibe create तो जो अगर emotions pour करोगे उस फेस्टिवल के अंदर, वेडिंग के अंदर, तो आपकी फोटोग्राफी भी अच्छी आएगी और आपका मज़ा भी आएगा. वेडिंग की तरह भी लगेगी. Right. बट अगर आप किसी इवेंट की तरह करते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट, तो उसमें पैसा कितना लगता है? उस पैसे से एक फ्लैट आ सकता है. आई वुड से 2 फ्लैट आ सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि भी आप 2 फ्लैट मत लीजिए या जरूर लीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी वाइज इन टेकिंग द डिसीजंस के हाउ इट विल बी. सो यू विल नॉट बिलीव, मेरी बेटी की शादी हुई, आई एम फादर इन लॉ,
लोग पूछते हैं कैसे जी, सो डॉली की तरफ देख के कि भी आपकी बेटी और दामाद भी है, हाँ जी। तो हम उनको बोलते हैं हमारी बचपन में शादी हो गई थी। तो बट यू विल नॉट बिलीव इट यार। चलो आई पुट अ क्वेश्चन टू यू, आज की डेट में अगर वेडिंग फोटोग्राफर करना हो कितने पैसे लगते हैं? 1 लाख 2 लाख? हाँ, सो आई स्पेंड 40,000 रुपीज. ओह And the kind of photographs so which came out, what the final result was there, so that was just like you know any other. And ऐसा नहीं है कि वो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर नहीं था, हाँ हाँ तो सो ही बट ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मेरे लिए बड़ा अच्छा किया. राइट So Raj Photography, so he is one of the most sought after wedding photographer. ओके But he charges so nominal from me. But the thing is कि why वो photographs अच्छी आई, because उसमें emotions थी. So that's how you do your manage your money, manage your wealth. तो देयर लाइक 2 क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं बिकॉज आई गेस मनी एज अ कंसेप्ट हमारे इंडियन कल्चर में इतनी बात नहीं करी जाती. हम जैसे वो आप कह रहे हो इमोशन से सोचते हैं एंड कई बार इट गोज फार बियॉन्ड वंस पॉकेट ऑल्सो. तो 2 चीज़ें. फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको क्या लगता है कि द पीपल हु आर रिच और जिनके पास एक फॉर एग्जाम्पल एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है विच इज कंसिडर्ड टू बी रिच, बट वो क्या ऐसे कारण होते हैं कि वो वेल्दी नहीं कन्वर्ट हो पाते? एंड पहले फर्स्ट ये बताओ फिर आई आस्क मैं सेकंड. उसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जी मेरी लाइफ का. जी मैंने एक चंक ऑफ लैंड खरीदा ओके माल रोड पे, हाँ लेट्स से 100 रुपए का. जी ओके, अब मैं प्राइस नहीं बताऊंगा Obviously. राइट. तो 100 रुपए का मैंने वो लैंड खरीदा माल रोड के ऊपर ही. जी और अगर मैं उसको बेचना चाहूँ हाँ तो उसको मैं अपने पास रखूंगा. अगर प्लॉट लिया तो हाँ हाँ अगर 1 लाख रुपए का प्लॉट है तो हो सकता है 1 साल में वो 1,10,000 का बिक जाए, 1,05,000 का बिक जाए, 1,20,000 का बिक जाए. सो व्हाट आई डिड इज उसके ऊपर मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की कमर्शियल. ओके ऑलराइट, ये वो मॉल यहीं पे है, मॉल रोड पे ही है. ओके उसको मैंने एक कमर्शियली बिल्टअप किया. उसके ऊपर लेट्स से अनदर 1 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लग गई. अब माई कॉस्ट इज 2 लाख. 1 लाख रुपए का ज़मीन हो गया, 1 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हो गया. जी अगर मैं उसको बेचने चाहूँ तो अगेन वो 2 लाख का मेरे को क्या मिलेगा? 10%, 20%, 5%. वॉट आई डिड इज उस 2 लाख रुपए के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सो मैंने उसको लेट आउट किया, उसको किराए पे चढ़ाना शुरू किया. सो देयर वर 12 यूनिट्स. जैसे आपकी ये मॉल है, यू नो, सो वैसे वहाँ पे 12 यूनिट्स हमने बनाए. उसको हमने किराए पे लगाना शुरू किया. ओके राइट, अब किराया आना शुरू हो गया. वो 2 लाख में लेट्स से यू स्टार्ट गेटिंग लेट्स से 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. राइट, वो किराया आना शुरू हो गया. द मोमेंट जो किराया अगर आना शुरू हो गया, उस किराए को अगर आप कैपिटलाइज करते हो, वो इमीडिएटली जो आपका 2 लाख है वो 6 लाख बन गया. वाओ दिस इज हाउ यू नो. फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्लोर है, अगर इसका प्राइस लेस से 4,000 रुपीज स्क्वायर फीट है, अभी इसके ऊपर आप कोई अच्छा सा ब्रांड लेके उसको किराए पे चढ़ा दो और जिससे आपको लेट्स से 2 लाख रुपए का इनकम आ रहा है, तो इमीडिएटली आपका 1.5 करोड़ का फ्लैट 4 करोड़ का हो जाए. This is how wealth is being created. राइट एंड मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस और वो दे स्पेंड ऑन देमसेल्व्स ओनली. डू यू थिंक इसी कारण दे आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट वेल्थ? No, they don't spend on that. They invest in the dead investments. They invest in the dead properties. You can say जिससे कोई पैसा नहीं आ रहा. अगर प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी सिर्फ एप्रिशिएशन होगी ना, 5 साल 10 साल 20 साल बाद. अगर उसी प्लॉट को आप डेवलप करके उसको ऊपर इनकम जनरेट करो, उस इनकम जनरेट करो के उसको कैपिटलाइज कर लो. दैट्स इट. मान लीजिए आपका यूट्यूब का चैनल है जी, कितने सब्सक्राइबर हैं आपके यहाँ पे? अराउंड 300. अराउंड 300. मान लीजिए अगर इस पे आपके 3 लाख या 30,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है. अगर मैं हूँ आपकी जगह पे, सो मैं वो 30,000 सब्सक्राइबर को किसी अच्छे डीप कट वाले को अपना चैनल ही बेच दूँ, बिकॉज आई नो मैं दोबारा फिर खड़े कर लूँगा, क्योंकि दिमाग तो मेरा है, क्रिएटिविटी तो मेरी है, सब्सक्राइबर दोबारा आ जाएंगे. और जिसको मैं बेच रहा हूँ वो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता. और 30,000 का यू नेवर नो, मुझे 30 लाख दे जाए या 3 करोड़ दे जाए. सो हाउ इट गोज. ओह वाओ दैट इज अमेजिंग. Yeah, and it actually happens. Yeah. I did it in my life so many times. Okay. That is जी amazing. जी जी जी. वाह. एंड एक और क्वेश्चन ये था आज के जनरेशन के बच्चों के लिए, आप मनी कैसे कौन से कंसेप्ट समझाना चाहोगे जिनसे ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव अराउंड मनी वो इजी, बी इट अबाउट मेकिंग मनी, बी इट अबाउट मैनेजिंग, बी इट अबाउट इन्वेस्टिंग, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हो जो आप समझाना चाहो? देखिए, आई वुड से आपने वर्ड किया आजकल की जनरेशन के लिए.
मैं बोलूँगा आजकल के एज ग्रुप के लिए, एज ग्रुप so the persons who are in early 20s or यस यस or in यस their स्टूडेंट लाइफ career में जो building Right. mode and all that. ये वाला जो एज ग्रुप है हमारे एज ग्रुप से बहुत बेटर है, बहुत बहुत बेटर है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स आई डोंट नो क्लियर है कि नहीं है, बट आप लोग करप्ट नहीं हो, आप लोग मैनिपुलेटिव नहीं हो, वॉट एवर यू ट्राई टू चार्ज सो आप सीधा बोलते हो कि सर हम ये चार्ज करेंगे और ये ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा. सो आई वुड से कि वॉट एवर यू डू द वे यू डू उसमें उसका काम चलेगा जिसमें यू नो क्रिएटिविटी है. सो दैट्स बिकॉज जो लोग आप वर्क फ्रॉम होम या वर्चुअल वर्ल्ड से जो कर रहे हो हमारा दूर दूर से वास्ता नहीं है हम लोगों के एज ग्रुप का, बट इट्स अ बिग मनी आई एम टेलिंग यू. सो इन्वेस्ट इन IT, इन्वेस्ट योर क्रिएटिविटी, इन्वेस्ट इन योर क्रिएटिविटी. इट मेक्स यू बिग, बट एथिक्स पे अनएथिकल होके नहीं. यू अंडरस्टैंड Yes, 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 एथिक्स एंड अनएथिक्स, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल अगर एथिकल तरीके से चलोगे, बिलीव मी सक्सेस विल किस यू. अनएथिकल तरीके से आप जल्दी जल्दी पैसा तो कमा लोगे, बट वो लोग ना बड़ी जल्दी वो ट्रबल में लैंड कर जाते हैं. सो वो एक जो लाइन है ना वो डिमार्केट करनी पड़ेगी. एंड एक में और, चलो आपने बुलाया गया, मैं एक सक्सेस मंत्र और देता हूँ. मेरे ऑफिस आप जब आओगे ना एक बहुत बड़ा कटआउट लगा हुआ है. मेरे टेबल के ऊपर जो माउस पैड है उस पर भी सेम कटआउट का प्रिंट है. मेरा जो मग है जैसे आपने बनाया वहाँ पे भी वो स्टिकर लगा हुआ है कि जो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उसमें इतना काम करो जो बाकी लोग नहीं करते हैं, सो दैट कि जब आपके पास जब लोग स्टार्ट करेंगे ना काम करना शुरू करेंगे तब आपके पास एम्पल मनी होगी. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू so much work, so much earn like this which people don't, so that you could make so much money which people can't. So 35-40 तक दबा के काम करो, you know, and then you can think of anything. Yeah, that's how you do. Wow. Yeah, so try to be ethical with your content and be yourself. So I think money will follow you. Yes. Right. मतलब इतनी ज़्यादा wisdom coming from you about the content and जी. everything, be it money, be it all that. It just makes me so happy and proud that I'm sitting next to you and learning all these amazing things from you. तो आपका क्या कहना है कि जैसे आप कह रहे थे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आपकी जनरेशन एंड हमारी जनरेशन. व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स अबाउट आवर जनरेशन एंड योर्स, मतलब इन कंपैरिजन. Pros and cons. मतलब आपके टाइम पे व्हाट वाज थिंग्स विच आपकी जनरेशन सही कर रही थी और ऑफ योर एज ग्रुप, और क्या चीज़ें हैं जो हम सही कर रहे हैं और शायद हम सही नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स एवोल्यूशन, इट्स एवर evolving time. So it doesn't depend on the generation. It depends on the person to person, so individual to individual, whatever he's doing good or whatever he's not doing good. Right. So अगर मेरे फादर के टाइम पे so वहाँ पे भी सक्सेसफुल लोग थे, फेलियर लोग थे. मेरे टाइम पे भी सक्सेस स्टोरीज आर देयर, फेलियर स्टोरीज आर देयर. Right. अभी भी सक्सेस स्टोरीज आर देयर, फेलियर स्टोरीज आर देयर. सो इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है. सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द एथिक्स, ऑन द क्रिएटिविटी, and yes, out of the box thinking. So that's very important. Let it be any generation. क्या आप मार्क जकरबर्ग उसने अगर 19 साल में कर लिया और जो मैकडोनल्ड का था उसने 55 साल में किया. Right, right. सो इट डजंट मीन कि वो 19 साल का है तो उसको नहीं करना चाहिए था, 55 का है तो उसको करना चाहिए था. Right, right. इट्स अगेन डिपेंड्स के you know, so how you do it. Yeah. But I would again and again say consistency, persistency. जो करो, एक गुजरात की कहावत है जी. कि जो करना है ना, जो भी कुछ करना है, अगर सोच लिया ये करना है तो 1000 दिन के लिए जरूर करो. गुजरातीज आर द बेस्ट बिजनेस पर्सन, सबको मालूम है, राइट? वो कहते हैं जी 1000 दिन के लिए उस काम को छोड़ना नहीं है. एंड व्हाट विल हैपन, अगर 1000 दिन आपने अपनी लाइफ के उस काम को दे दिए, वो आप उसमें सक्सेसफुल होगे. बाई चांस अगर नहीं होते तो डोंट थिंक ऑन 1001वें दिन, क्विट दैट जॉब, दैट्स नॉट फॉर यू. So that's how you do it. So and I think that's the road to success for everybody in every age group. Yeah. Right. Oh, that is. I think this is going to stay with me for a long time. Yeah.
दैट इज अमेजिंग कोट। तो अमृतसर के बारे में आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आपने अमृतसर पे एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक लिखी है। हाँ, मैं बताता हूँ जी। अमृतसर इज अ ग्रेट ब्रांड पावर। ओके, अमृतसर शहर की जो ब्रांडिंग है, उसकी जो ब्रांड पावर है, लाइक आई वुड से पावर कैसे? अमृतसर इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। एंड एक चीज़ ये भी है, अमृतसर की कदर अगर सबसे कम किसी को है ना, तो वो हम अमृतसरियों को ही है। हमें मालूम ही नहीं है हम किस ट्रिगर पे बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पे हमें मिलने नहीं आते, दरबार साहब मत्था टेकने आते हैं। यू नो एवरीबॉडी कम्स हियर। लोग यहाँ पे आते हैं, इंडो पाक बॉर्डर देखते हैं, यस। हमारे यहाँ पे आके हमारी हेरिटेज को अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई थिंक अगर हम उसको थोड़ा सा भी कैपिटलाइज कर लेना, बिलीव मी, सो आवर सिटी is worth like Barcelona or Paris or Wow. Rome, or so we can match that kind of vibe. So that's what we are trying to do. कि यार अगर हम यूरोप जाकर देखते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रीट आर्टिस्ट वायलिन बजा रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बजा सकती? उसके लिए इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट करने की क्या जरूरत है? वो तो अपना एक आजकल जो पोर्टेबल ब्लूटूथ वाले स्पीकर है, Because of that, right? उसके साथ वायर लगाओ एंड शुरू हो जाओ, एंड पीपल विल स्टार्ट कमिंग, Right. एंड दे आर योर प्रोडक्शन टीम. So they are your photographers, they are your videographers, they are making reel for you. Right. So you're playing something and all that. Right, So it's about, yeah, that's all. This is a message for us. तो आपको क्या लगता है कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं? किस चीज़ को? जो आप कह रहे थे ना कि हमारे ब्रांड पावर को अगर हम कैपिटलाइज करें अमृतसर की, तो वी कैन बी यस, कैपिटलाइज ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो भी अमृतसर में आए वो एक हैप्पी एक्सपीरियंस लेके जाए, एंड जो बंदा एक हैप्पी एक्सपीरियंस लेके जाएगा ना, वो हैप्पीनेस स्प्रेड करेगा जिससे और लोग आएंगे. सो वी नीड टू, जो ये टूरिज्म इंडस्ट्री है या ये जो विजिटर्स आ रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर वो आ गया और उससे हम सारे पैसे अभी ले लें कि भाई पापड़ अगर 100 रुपये का तो उसको 500 का बेच दें और अगर स्टेशन से दरबार साहब जाने का रूटीन में हम लोकल लोग से 20 रुपये पे करते हैं और उनसे 200 चार्ज कर लें, सो दैट्स गिव अ बैड वाइब्स, दैट गिव अनहैप्पी एक्सपीरियंस. मुझे लगता है वी शुड थिंक ऑफ द कलेक्टिव गुड, कलेक्टिव हैप्पीनेस. अभी एक छोटी सी बात है, सो वी हैव अ इमेंस ट्रैफिक प्रॉब्लम इन अवर सिटी है ये, बिकॉज हमारा शहर एक्सपैंड करने की जगह वहीं पे ही ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है. अभी मेरे क्वींस रोड पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एक बैंक था, अब बैंक मर्ज हो गया पीएनबी ऑफिस, अब वहाँ 13 दुकानें बन गई. सो 13 दुकानें बन गई, इसका मतलब 13 गाड़ियाँ और आएंगी क्वींस रोड के ऊपर. लोड तो उतनी है. राइट. एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट यूजिंग. बड़ा अजीब लगता है कि भी हम लोग 4 व्हीलर से बाहर नहीं आते, बट क्यों नहीं आ सकते? ठीक है ना, आई ड्राइव एन एसयूवी बट आई कम टू माय ऑफिस ऑन अ साइकिल. ओह हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ, मेरे तरफ देख के कितने लोग और शुरू हो गए हैं. सो एटलीस्ट मैं एक गाड़ी का बटन तो उस रोड से कम कर सकता हूँ ना. So that's my contribution to the city. I don't think everybody should think like this. And also this tells you, that tells me कि and the audience कि you're very much fitness freak also in that sense. Not much. Ask my wife, she will say I'm not. But उसमें जो मजा नहीं यार, रेड लाइट पे, ट्रैफिक जैम पे, जब आप साइकिल पे निकलते हो, एक बंदा एसयूवी में बैठा है, एक मर्सिडीज में बैठा था, बीच में से ऐसे ऐसे करके सबके आगे आते हैं, और जो वो फीलिंग है ना, that's priceless. I'm telling you. Yes, that's priceless. And why not? Yeah, why not? Yeah, why not? I extensively use Rapido. Okay. I extensively use e-rickshaw. I extensively use sometime auto rickshaw पे ना, वो एक पूलिंग वाला नहीं होता जो 10 रुपए लेके कोई आगे बैठा होगा, कोई पीछे बैठा होगा. Right. That also, yeah. So why, अब जिस रोड के ऊपर गाड़ी जाएगी और वहाँ पे पार्किंग का इशू है, और वहाँ पे जाके मैं बोलूँ यार पार्किंग ही नहीं है, और मैं ये बोलूँ कि ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, क्या हो गया इस शहर को? और यार मैं भी तो इस शहर में रहता हूँ. सो व्हाई नॉट आई स्विच माई सेल्फ टू दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट which is the best suitable. I think everybody should think like this. Right. Like क्योंकि ज़्यादातर I might get problematic after saying this. Might have problem or a lot of trolls for this. But do you think this is true कि हम पंजाबीज थोड़े से आलसी होते हैं and ये कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, but we are not thinking about the solutions, especially in अमृतसर?
it's all over. It's all over, yeah. It's all over. It's a human psyche. So हम rational से सोचते हैं, wisdom से नहीं सोचते हैं. You know, so fault finding. हाँ, So right. that's Because जो आपने ये take बताया, this is very different from anyone I've heard from. So this is very rare to see. And जिन लोगों को मैं podcast पे लाया हूँ, mostly there are people who think like the way you do. They're not thinking about कि अगर ये problem है तो कौन solve करे. They're like मैं solve करूँगा. If in some degree they can, and that is such a beautiful thing. Yeah, I cannot solve the problem. No, But at least I can change myself. Na, yes. yeah. So I cannot change you. Yes. Anyone. Right. But I can certainly change myself. Yes. एक तरफ देख के अगर एक दो बंदे हो भी जाए change तो अच्छी बात है. At least I am at peace. Right. That's how it goes. My last question for you is, Please. तो डू यू थिंक कि ये जो हमारी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिकॉज लोग बहुत सोच रहे हैं, लाइक इवन इफ आई वाज सेइंग दिस, आई वाज नॉट सेइंग इट डायरेक्टली, क्योंकि देन ऑल दिस कैंसल कल्चर कम्स इन एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि I think you should not react on these kind of things. You should respond to these kind of things. yeah, There's a difference between react and respond. right. That's one. एंड एक चीज़ वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. पंजाबी च कहते हैं दुनिया ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋग. आई थिंक वी शुड नॉट बॉदर इट यार. हम जो है वैसे हैं. व्हाई शुड आई रिएक्ट? अगर आप मेरे को बोलते हो मैं मोटा हूँ तो ठीक है ना. सो व्हाई शुड आई टेल यू कभी आपने मेरे को मोटा क्यों बोला? इसका मतलब योर स्पीच एंड योर वर्ड्स आर ट्रबलिंग मी. Right. So you know, so and I am in trouble. So why should I be? Right. So that's your perception. Right. So that's why I don't think so. Right. I guess I got it. We should take it in a better spirit, in a healthy spirit. Yes, यार मोटा हो तो फिर क्या? Right. So for आपने बोला आलसी हैं. आलसी होना बड़ी अच्छी बात है यार. मेरे को और आलसी होने से क्या होता है? दिन आराम से कटता है. तो इतनी छोटी सी लाइफ है, इतनी जल्दी निकालने की जरूरत क्या है? मजे निकालो ना यार. ठीक है ना. स्मार्ट वर्क करो आप जैसे आप लोग करते हो. हार्ड वर्क भी करना चाहिए. So some last words you would like to end on? नहीं, इट्स बीइंग एक्सीलेंट. और एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए. जी. आपकी पॉजिटिविटी क्या यू नो सीक्रेट है? यू आर वेरी पॉजिटिव. योर फेस इज वेरी पॉजिटिव, यू नो. सो एंड योर स्माइल इज एक्सीलेंट. यू नो रेसिपी फॉर दिस. So I would say कि first thing, not that कि आप यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, but bringing people on this podcast is something which gives me happiness. बहुत टाइम के लिए बंद कर दिया था, but now I'm coming back with season 2. That is one. And obviously कि family बहुत ज़्यादा supportive है, be it emotionally, be it financially. So that gives me a lot of freedom कि मैं अलग अलग चीज़ें कर सकूँ. And having amazing conversation with people like you, it gives me a lot of positivity. I feel this is something कि मुझे करते ही रहना चाहिए, because it is good for my mental health also. Meeting new people and learning from them. So I guess that is it. And I invite you guys. Azal is there. So आपका चैनल है. जी. So why can't collabs? Yes. So there is a जमाना ही collaboration. Exactly, Wilson. So why I invite you? You can let's collab in whatever way you feel like. So we are there because हमारा तो पर्पस ही है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. Yeah, right. स्टार्टअप्स को, आर्टिस्ट को, क्रिएटिव माइंड्स को, सो दैट कि वो एनकरेज हो. प्रमोशन तो उनकी डेस्टिनी है, उन्होंने कैसे प्रमोट होना है, कैसे सक्सेस होना है. But I think it was collab. Thank you so very much for inviting me to this. Thank you so much. And so there's this saying also कि creativity is collaborative. Actually, yes. Actually, you cannot ever have a mind of creativity when you are alone. It has to be collaborative in some way. मतलब jealousy वगैरह it should be aside, and that is how it. Yeah, and this is the biggest quality of today's age group. Collaboration पे इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है. जी. और ये जो इतना सक्सेस ये कोलैबोरेशन के कारण ही आ रहा है. Obviously. Yes. Thank you. Yes. Thank you so much, sir. पैसा is very important. I'm telling you. You do everything to make money, but again in an ethical way. Yes. Because ethical way में क्या होएगा? आपको peace मिलेगी, satisfaction मिलेगी, और आपको कोई trouble नहीं आएगी. So I am a chartered accountant, so and an economist also. So it is like this. You know, आप कुछ भी करो, बड़ा करो, छोटा करो, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आना ही आना है. जो काम आज आप शुरू करोगे, सो 4 साल तक वो पीक पे जाएगा, और वो पीक पे जाके अगर आप एथिकल नहीं हो तो वो नीचे आएगा. इट्स अ लॉ ऑफ नेचर. कोई भी उठा के देख लो. एंड उसके बाद अगर आप स्टैटिक कर लोगे उसको, सो देन इट अगेन गोज अप. सो दैट्स देयर. सो पैसा
बनाना और बचाना ये हमारे हाथ में है. And I would say कि whatever you make or save till a certain age, let's say 50 साल, अगर आपने अपना कैरियर 19 साल में शुरू किया है, सो आपके पास 20 या 25 साल है उस पैसे को बनाने में और उस पैसे को बचाने में. राइट. एंड मान लीजिए अगर 50 साल की एज में अगर आपके पास लेट्स से 10 करोड़ इकट्ठा हो गया, देन स्टार्ट एंजॉयिंग विद 10 करोड़. अगर आपके पास 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, इवन देन यू कैन स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ लाइक दिस. मान लीजिए 10 लाख है, तो यार 10 लाख, बिकॉज जो आपका कि वो कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, वो विजडम के साथ आता है. इस बकवास के ऊपर आज की एज में ध्यान नहीं देना. जब आप मेरी एज के होगे ना तब इसको सोचना, तब आपको लगेगा. अभी तो सो योर सोल मोटिव टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन योर कैरियर, इन योर how you do your living. So that's very important. 5 साल बाद अमृतसर को मैं कहाँ देखता हूँ, ये डिपेंड करता है हमारे अमृतसरियों के ऊपर कि हम अमृतसरी अपने आप को 5 साल बाद कैसे देखते हैं. मेरी बगल में एक होटल है, मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है. ही सेज कि सीज़न हो अमृतसर में 4-5 दिन ऐसे आते हैं जब यहाँ पे होटल 20,000 का भी बिकता है, 2 लाख का भी बिकता है. सो लोग कुछ भी चार्ज करते हैं, which is not good. I think it gives such an unhappy experience to the visitor. So मेरी बगल में मेरा दोस्त है, उसका होटल है. He says कि मेरा जो रैक रेट है let's say 3,000 रुपया, मैं उससे ऊपर कभी भी नहीं जाता हूँ. जब ऑफ सीजन है मैं 3,000 का 1,500 में रूम दे दूंगा, बट जब पीक सीजन है मैं 3,000 का 3,100 भी चार्ज नहीं करूंगा. दिस इज एथिक्स. उससे क्या होता है, कहता मेरा होटल सारा साल भरा रहता है, बिकॉज जो लोग वापस जाते हैं वो और लोग बेचते हैं. सो आई थिंक अमृतसर 5 साल बाद कहाँ है ना, ये आप और मेरे पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने करना क्या है, हाउ वी वांट टू डू इट. सो दैट्स इट. Right. So, with so much of wisdom, so much of amazing conversation, we come to an end of this podcast. And क्योंकि ये first season का first episode है, तो I want कि मुझे आपकी blessings मिले and we grow it and keep continuing doing this. जब आप ब्लेसिंग बोलते हैं ना तो मेरे को एहसास होता है यार मैं बुढ़ा हो गया. अरे नहीं. my best wishes are with you. Yes. My good wishes are with you. Right. And I think हम लोगों को आप लोगों से सीखने की जरूरत है. So you guys are much wiser than us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. चलिए. Thank you.